हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग फाइन। आज हम हैं भुवनेश्वर एयरपोर्ट में एंड वी आर ट्राइंग समथिंग न्यू। टुडे वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट अ व्लॉग सीरीज एंड आई विल लेट यू नो इन अ शॉर्ट व्हाइल व्हाट वी आर अप टू। सो वी हैव फाइनली स्टार्टेड आवर जर्नी और अभी हम हैं एक रोड साइड ढाबे में जहाँ की हम लोग रुके हैं फॉर अ शॉर्ट ब्रेक और इसके बाद हम जाने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। सो टुमारो मॉर्निंग आई विल रिवील आवर डेस्टिनेशन। स्टे ट्यून्ड टिल देन। Are you still guessing where am I? Guess no more because I am in Manali. You must be thinking, what am I doing in Manali? Like all of a sudden. So what I'm doing here is I'm here with my sister and we are planning a vacation for 15 days. We will be exploring Manali and Dharamshala. Like these are the two places we are covering this time, and we will be trying to I'll be trying to vlog the places we are trying to cover. So let's see how it turns out to be. Stay tuned. So basically we are at Nagar village and we are currently at the Gauri Shankar temple. This temple dates back to around 12th century और ऐसा कहा जाता है कि ये टेम्पल का जो स्ट्रक्चर है इट्स लाइक अ माउंटेन। तो इसका जो टॉप है इट्स लाइक अ कोन एंड इसका बॉटम जो है इट्स लाइक अ स्क्वायर एंड इन द पेडिस्टल देयर आर शिवा, पार्वती and along with them we have Ganesh and Kartikeya in their lap, and the temple is at a very beautiful location in Nagar village and a must recommended for whoever visits Manali. Currently, after visiting Gauri Shankar temple, we have come to Nagar castle. It's also in the Nagar village and the area around it is really
beautiful. And it's She's tired. She doesn't want to say it, but she's tired. yeah, actually it's a slope and we have to trek up to it. It's a small hike, and actually we came to Nagar village through a bus, local bus, which costed us around 50 rupees, and from there we have been walking uphill, and now we have reached at Nagar castle. So now we are at the Nagar castle. This castle is said to be from the medieval period. The time is around 1460s और ये बनाया था राजा सिद्ध सिंह ने. और इस castle के बारे में एक बहुत ही interesting story है. And I'll tell you the story after I show you the castle first. Let's go. Architecture here is totally made up of stones. और ये stones राजा सिद्ध सिंह ने बनाते टाइम मंगवाया था एक abandoned palace से, और वो मंगवाने के लिए उन्होंने एक human chain बनाया था on the BS river, और उस river से उन्होंने stones transfer किए थे from that abandoned palace to here. Nagar castle. Let's hop on to the next destination. So the next destination we are at is Rorik's Art Gallery. It's a mixture of Russian and Eastern art culture, and there's the memorial. So Nicholas Roerich was married to Helena Roerich, and this gallery once served as their residence. This art gallery is run by both Himachal and Russian government together. Paintings of Kullu, Spiti and Lahore are preserved here, where they show the beauty of valleys and peaks during early hours of evening. Nicholas Roerich was one of the best painters of his time, and he was known as the master of the mountains because of the beauty that he portrayed in his art. And Jawaharlal Nehru also visited the place, and you can see that the place is absolutely stunning. No wonder Himachal became an inspiration and created such a great artist. Drive the same roads every day. We both get there our own way. Thistle and an apple tree. How different two souls can be. But we both grow from the same sorrow. If we both know we'll be together tomorrow, I can be like a tree in the wind. Same old roots, but I can bend, turning to understand and sway together. Himachal native dishes here, and अंकुश भैया हमको बताएंगे कि ये क्या क्या है. तो ये हमारा ट्रेडिशनल थाली रहता है. अगर जितना भी हमारा ऑथेंटिक फूड होता है जो सब एक थाली में रहता है. स्पेशली सबसे पहले आपका लोकल डिश होता है सिद्धू. ये हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल डिश रहता है. इसको देसी गाय के घी में डिप करके और ये ग्रीन चटनी के साथ खाते हैं. ठीक है. उसके बाद आपने घी और शक्कर का पेस्ट करना है. पेस्ट करके जो मक्की की रोटी का खाना है. ऑल्सो मक्की की रोटी का लिंगड़ी की सब्जी है. जंगल में ये सब्जी मिलता है. ऑर्गेनिक सब्जी होता है. सेहत के लिए भी अच्छा रहता है. इसको भी आपने मक्की की रोटी का खाना है. ये लोकल रेड राइस है. एशिया कॉस्टली राइस रहता है और ये ऑर्गेनिक चावल रहता है.
इसको आपने राजमा और कढ़ी के साथ खाना है और लोकल पिकल है हमारे यहाँ पे। बाकी पूरा और ये सब विद द व्यू ऑफ वाटरफॉल। Yes. हाँ, आपका नाम बताइए। मनीराम जी। मनीराम जी, आप मतलब यहाँ पे कब से मतलब ये रेस्टोरेंट मेरे को आज 24 साल हो गई, 24 ईयर। 24 जी ईयर। जी। और आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से है कि मतलब माउंटेन में यहाँ पे व्यू, सुंदर व्यू के साथ ऐसा वाटरफॉल कुछ नहीं कि हमारा गांव भी यहीं पे और यहाँ पे साथ में मेरा सेब का बागान है। अच्छा। तो मैं वहाँ से पानी की बोतल के लिए आया, वो तो पानी यहाँ का शुद्ध पानी होता है। हाँ। तो यहाँ से कोई फॉरनर ट्रैक करके जा रहे थे, तो उन्होंने ये बोला कि मनीराम जी हम लोग ट्रैक करके आएंगे 100-200 लोग, अच्छा। तो अगर आप यहाँ का लोकल ऑर्गेनिक फूड तैयार करते हैं तो हम लोग यहाँ पे आपके वहाँ खाना खाने के लिए आएंगे। अच्छा, तो आप यहाँ पे सिर्फ लोकल मतलब लोकल डिश ही मतलब बस यही लोकल डिश के लिए और सब आग में तैयार किया जाता है ये खाना जी, और बिना मसाले का और प्योर ऑर्गेनिक। प्योर ऑर्गेनिक। और अगर कोई मतलब नॉन वेज प्रीफर करता है तो नहीं जी, तब भी हम नॉन वेज का यहाँ रखे नहीं है बिल्कुल ही। इधर अगल बगल बनाना है तो बना लो, बाकी अदरवाइज मेरे ढाबे में ये बिल्कुल ही नहीं है जी। हाँ, हमने खाना खाया आपका यहाँ और बहुत अच्छा खाना था। इतनी दूर से आए हैं जी तो अच्छा लगना चाहिए, तभी हम लोगों को भी ऊपर वाले की बदौलत थोड़ा सा खाना बनाने का और ज़्यादा मिल जाता है। तो अभी तो ये सारा जितना भी है ना, ये गॉड गिफ्ट है, सब अपनी खेती का है। तो धीरे धीरे इसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहेंगे हम लोग। तो जब आप ज़्यादा लोग आएंगे तब ये बढ़ता जाएगा। तो अगर आपको मतलब ऑथेंटिक हिमाचल डिश खाना है तो जना वाटरफॉल के पास है मनीराम जी का ढाबा, यहाँ पे आप ज़रूर आए और हैव अ सम्पशियस मील। एवरीबॉडी, और आप भी भगवान करे रोज बरोज ऐसा ही काम बढ़ता जाए और अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे आते रहे। हाँ, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं व्यू के साथ। जी, सब ऊपर वाले की देन है जी, मेहनत करने का मज़ा आता है जी, और आप लोगों के उठने बैठने का भी वक्त मिल जाता है। तो थैंक यू। थैंक यू सो मच, खाना बहुत अच्छा था। सो वी आर एट अवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। अभी हम जा रहे हैं एक छोटे से ट्रैक पे। सो अभी हम जा रहे हैं सजला वाटरफॉल की तरफ। तो सजला वाटरफॉल बेसिकली एक ऑफ बिट लोकेशन है। वो मेन रोड से अराउंड 15 मिनट्स का रास्ता है और अभी हम ट्रैक करते हुए जा रहे हैं अमॉन्ग दिस ह्यूज फॉरेस्ट। You can see the arrows over there. तो वो arrows को follow करते हुए hopefully we don't get lost. We won't. I hope we won't. Yeah. Next time you visit this place or do like for any matter, if you are going for any trek, do carry some biscuits. Not for yourself, but for the dogs. They're really cute. Horses again. That's very fast. Okay, we will continue with the trek.